आज हमने कवर करना है बोन स्कल का लास्ट रह गया ना, दैट योर फोर्थ सबस्टेज। ठीक है, बाकी हमने इसके स्कल के जो बाकी सारे एस्पेक्ट्स वो बाकी तीनों सब स्टेजेस में कवर कर लिया। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, आई डोंट नो कि आप लोगों ने स्कल में नॉर्मा बिजालिस पढ़ा है अभी तक या नहीं, मगर हम जब स्कल पढ़ते हैं तो वी डिवाइडेड इनटू नॉर्मा फ्रंटालिस, नॉर्मा वेंट्रालिस, वर्टिकलिस। Verticalis cover कर लिए। The only thing that part of the fourth substage is norma vision। मेरी आवाज अच्छा कट रही है। Let's see, I think भी ठीक हो जाएगी। Let's give it a few minutes. Second year वालों को plus extra mark। Okay, so I was telling you guys that the skull is studied from different aspects. I'm sure और जब भी हम स्कल को स्टडी करते हैं तो आई ऑलवेज रेकमेंड अपने साथ नेचर्स का एटलस रखें। फ्रेश स्टूडेंट who don't have anatomy, you need BD. You need these 4 books when you study gross anatomy, ठीक है? नेचर्स का एटलस में होती है, we have pictorial memory of what you're looking at. So the last aspect is called the norma bizalis, or this view is also the base of the skull. अभी भी नहीं आ रही आवाज? कोई और बोल के देखे जरा। Someone try speaking. Let me see if it's clear or not. Yes, ma'am. हाँ जी, आप लोगों की तो सही आ रही है। So like, is mine clearer or should I switch my internet connection? मैंने 4 बुक्स आपको लिख के दी हैं चैट में, आप ऊपर देख लो। सही है, तो अभी के लिए क्लियर है। If you don't hear me clearly, just tell me. I'll switch my internet. उसी वक्त ठीक हो जाएगी। So I was telling you, we're studying the base of the skull. The base of the skull को नीचे से देखते हैं। जब हम नीचे से देखते हैं skull को, तो क्या क्या नजर आ रहा होता है? What are the structures you see? What are the bones that are part of the base of the skull? अभी is my voice clearer now, guys? Yeah, can you guys hear me better now? Does it work or no? सही है, चलो। So I was saying that we're studying the base of the skull. हर aspect जब हमने skull का study किया है, तो we were looking at कि वो कौन सी bones हैं that make up the skull, ठीक है? So over here we have some bones. We're gonna look at कौन कौन सी bones हैं that make up the bizalis. Bizalis में कौन कौन सी bones नजर आती है, इसके कौन से parts हैं। हम bizalis को 3 parts में study करते हैं, तो हम उसे किस तरह divide करते हैं, कहाँ से कहाँ तक वो एक part होता है उसका, इसके क्या फीचर्स हैं, फीचर्स और इस पे क्या स्ट्रक्चर्स अटैच्ड है। फीचर्स जो हैं इसके अंदर ये कुछ फोरामिना है, ये नजर आते हैं बेस ऑफ स्कल में। वी हैव टू रिमेंबर what passes through these foramina. So when you study the base of the skull at home today, you're going to use the Netter's Atlas, ठीक है? और उधर से ही आप देखेंगे कि इसके अंदर से foramina में से क्या क्या गुजरता है, ठीक है? You have to memorize those for MCQ, for SCQ and for Viva purposes. When someone gives you the base of the skull in the Viva and they say यहाँ पे रख देंगे वो इसके through probe गुजारें या इसके through probe गुजारें, you should right away know which foramen this is and what passes through it, okay? And yeah, so someone else asked, what are the other books? The fresh students, you have to have the KLM, you have to have BD, and you have to have Snell for gross anatomy.
ठीक है, दिस इज फॉर ग्रॉस एनाटॉमी के मैंने अभी आपको बुक्स बता दिए हैं. आई वुड recommend that if you don't have the books, get them as soon as possible, and if the bookstores are closed, try to get them from some senior or someone you know. Okay, कोई दोस्त हो, किसी बहन का दोस्त हो, कोई दोस्त हो, कहीं से आगे पीछे से मिल जाए. Get the books and start studying because you guys are lagging behind, like really lagging behind. ठीक है, so here we come. Base of the skull, they say, is formed by, it's formed by the heart palate, जो कि दो बोन से पड़ता है. My old students would know that the base of skull is formed by two bones. Is Shahir here with me? Shahir है आज क्लास में? नहीं है. Is Samin here? Yeah, Samin, can you tell us that what are the two bones that form the base of the skull? Please, Nadeem, इन्हें unmute कर दें सबको. Palatine and the sphenoid? Are you sure it's the sphenoid bone that forms the palate? Maxilla and the palatine bone. And palatine bone का कौन सा वाला process होता है? Horizontal plate होता है. ठीक है, शाबाश नॉर. So when we have the hard palate, it's right there in front of you two guys. Hard palate is formed by the palatine processes of the maxillae and the palatine bone. This is the palatine, ये जो green वाला है आगे का हिस्सा hard palate का. This is the palatine process of the maxillae, and this one over here is the horizontal plate of the palatine bone. ठीक है? Then you have the vomer. एक ये छोटी सी बोन है जो नोज के बीच में पीछे डिवीजन करती है, दो कोने के बीच में, ये ओपनिंग्स है नोज के पीछे से into the nasopharynx. ये दो, जिस तरह हमारी दो आगे से नेरीज होती है, इसी तरह it goes all the way back and it opens into the nasopharynx with two openings. उनके बीच में जो दो एक बोन है, that is a vomer. ये इंडिपेंडेंट बोन है. ठीक है, जब हमने नॉर्मा फ्रंटालिस भी पढ़ा था और फेस के आगे सामने से सारी बोन्स पढ़ी थी, तो आई होप यू रिमेंबर that उस वक्त हमने वोमर वहाँ पे पढ़ी थी. Then you had the sphenoid bone with its pterygoid processes. ठीक है, we had the under surfaces of the greater wing. ठीक है, under surfaces of the greater wing है, and the spinous processes. ठीक है, जो हम इसको spine of sphenoid कहते हैं. यहाँ पे spine of sphenoid आती है जो जहाँ पे टेम्पोरल और इंफ्राटेम्पोरल फॉसा की बाउंड्री बन रही होती थी, दोनों एक पॉइंट पे खत्म हो रहा था तो दूसरा शुरू होता था. स्पाइन ऑफ स्फीनोइड भी आता था वहाँ पे. ठीक है, तो स्पाइनस प्रोसेस विच इज ऑल्सो द स्पाइन ऑफ स्फीनोइड. ठीक है, सो वी हैव स्फीनोइड बोन जो इसमें हमें नजर आ रही है. ग्रीन वाली हमारा मैक्सिला है जो नजर आता है, रेड वाला पैलेटाइन बोन है, येलो वाला स्फीनोइड बोन है, पिंक वाला वोमर है, रेड वाला टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन सारा हमें नजर आता है, and the purple one is your occipital bone. So majority of the bone which we can see on the base of the skull is occipital. ना नॉर्मा लैटरलिस में नजर आती थी ऑक्सीपिटल बोन, ना फ्रंटालिस में, ना वर्टिकलिस में. कौन से नॉर्मा में ऑक्सीपिटल बोन नजर आती थी? ये सिर्फ इसमें नजर आती है, बिजालिस में नजर आती है और एक और नॉर्मा में आती. कौन सा नॉर्मा पढ़ा था? Occipitalis, yes, it's obvious and its common sense also tells you that occipital side से जब आप देखते हैं तो उधर आपको ऑक्सीपिटल बोन नजर आती है और यहाँ पे नजर आती है. ठीक है, अच्छा ये साथ साथ ही हम थोड़े से देख लेते हैं जो वो फोरामेन दिखा रहे हैं. ऑब्वियसली आई विल गो ओवर दीज अगेन बट लेट्स लुक एट देम. यहाँ पे एक जगुलर फॉसा होता है और उसके अंदर जगुलर फोरामेन होता है. ठीक है, ओवर हियर जगुलर फोरामेन होता है. ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स हैं. ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पे आके क्या लगता था गाइस? एटलस लगती थी. वेरी नाइस, एटलस लगता था. ठीक है, फोरामेन मैग्नम है. फोरामेन मैग्नम से कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है वो लास्ट पार्ट आके इसे टच कर रहा होता है? इसका नाम लास्ट प्रेजेंटेशन में मैंने लिया था, वहां पे एक न्यूक्लियस भी पड़ा होता है, मेडुला. वेरी नाइस समीर, इट वाज योर मेडुला ऑब्लोंगेटा. ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे क्या कॉन्टिन्यूस होता है? नीचे, नीचे, नॉट अपवर्ड्स, नीचे, डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द फ्लोर, टुवर्ड्स ग्रेविटी. क्या चीज होती है? इंफीरियरली. लेट्स टॉक एनाटॉमिकली. इंफीरियरली स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, तो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड गुजरी होती है, यहाँ पे आपकी
एटलस आके कनेक्ट होती है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से। इस इधर एक ट्यूबरकल था, उसको मैंने क्या नाम बताया था उसका? ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर एक ट्यूबरकल था। What tubercle was it? Pharyngeal tubercle. Very nice, Zishan. It was your pharyngeal tubercle. Pharynx की हमने boundaries पढ़ी थी, तो वो यूं करके pharynx यहाँ पे पड़ा हुआ होता था, तो pharyngeal tubercle पे भी उसकी एक attachment थी। और occipital bone के इस पूरे part का क्या नाम होता था? It was your, can someone remember? It started with a B. It was what? ऑक्सीपिटल बोन की इस पूरे पार्ट का क्या नाम होता था जो यहाँ पे बेस पे आ रहा था? क्या नाम होता था? Someone remember? It was called the basal occiput. ठीक है, this part of the occipital bone is known as the basal occiput. ठीक है, it's your basal occiput because ये बिल्कुल बेस पे है। Can you see that ये बिल्कुल बेस पे है? ठीक है, बाकी सारा तो कर्व हो रहा होता है, ये सारा बोन कर्व होती है, मगर this is at the base. So this is your basal occiput. And you look at the left, there is a foramen here. We'll look at what it is. अभी this is ovale, this is spinosum. इधर नहीं नजर आ रहा, मगर यहाँ पे आगे एक फोरामेन होता है जो क्रेनियल कैविटी में नजर आता है। कौन सा होता है? जो यूं करके ये तीन बनते हैं, एक होता है, फिर ओवेल होता है, फिर स्पाइनोजम होता है। कौन सा होता है वो? Rotundum. Ross से हमने याद किया था. Very nice, Mazhar. So we had rotundum, ovale, and spinosum. So the rotundum doesn't show over here as such, but ovale or spinosum show हो रहा है, ठीक है? Ovale से कौन सी cranial nerve गुजरती थी? Cranial nerve की कौन सी cranial nerve की कौन सी division गुजरती थी? Yes, V3 गुजरती थी. Very nice. Okay, then you had the styloid process here. और ये वाला process कौन सा? Styloid process जो लंबा सा elongated है, और ये मोटा सा कौन सा process है? Mastoid process. Very nice. What fossa is this? What comes and goes into this? What fossa is this? Mandibular fossa. Very nice. This is your mandibular fossa, and the condyle comes and attaches over here. और ये क्या है? Arch. What arch? Zygomatic arch. Do we remember zygomatic arch कौन सी दो बोन से बनती है? Do we remember that? Zygomatic arch was formed by which two bones? Zygomatic bone, yes, the red one over here, and this pinkish red, the temporal bone. ठीक है, तो zygomatic process of temporal bone and the temporal of the zygomatic bone. इस तरह करके वो उसे approach करती हुई इस तरह बनती है, ठीक है? This is taken from your atlas, Netter's की किताब, Netter's की pictures से पढ़ना है, ठीक है? So over here they show you all the structures. How I'm going to show you these structures is कि मैं right side से upward से शुरू करती हूँ. Okay, let's go over each of them together. कि क्या क्या बना हुआ? If I had a skull, it would be way nicer, but because we don't, तो इस पे अभी बनाओ. And I have some pictures आगे which mimic a skull. ठीक है, बिल्कुल skull के ऊपर से तस्वीरें ली गई हैं. So when you see it on the skull, it will be easier for you because obviously skull पे ये coloring ये वो पड़ी हुई है, ये वोमर पड़ी हुई है, ये स्फीनोइड है. But when you look at the skull, it suddenly इस तरह की तस्वीर नजर आती है, इस तरह की. Let me show you. And then you don't understand jack what's going on. That's why when you study, इस तरह होता है skull. अब यहाँ पे तो कुछ नहीं समझ आता कहाँ पे कौन सी बोन खत्म हो रही है, कौन सी शुरू हो रही है, right? So when you study netters, आप अपनी netters को साथ रखते हैं और अपनी एक pictorial memory बनाते हैं skull के ऊपर, ठीक है? Obviously exam skull के ऊपर होएगा, ठीक है? Exam इस तरह की colored bone पे नहीं होएगा, ना ही model पे होगा, exact skulls पे होते हैं. और आपने अपनी memory इतनी strong बनानी है that you know the points and you remember what bone stops and starts from where. Go down, ठीक है? We have इन सबको unmute कर दे नदीम, और फिर आप सब लोग अपने आप को खुद mute कर लो. So when I start asking questions, you correspond orally with me, ठीक है? So it doesn't become very boring.
So we have ये वाला जो process है ये zygomatic process of maxilla है. Why? Because it is approaching the zygomatic bone here. ये सारी green वाली zygomatic वो है maxillary bone है. तो ये zygomatic process of the maxilla है. ये आपका incisive fossa है. ठीक है maxilla में यहाँ पे हम कौन सा block देते थे guys? मैंने तुम लोगों को बताया था. कौन सा nerve block होता था? Incisive block होता था. शाबाश. Here you had the palatine process of the maxilla, you had the median palatine switcher, you have a transverse palatine switcher जो कि दो cruciform सा ये switchers होते हैं. देखो एक यूं करके जा रहा है दोनों साइड की maxilla को connect कर रहा है और एक horizontally run कर रहा है because it differentiates between your maxillary and horizontal plate of the palatine bone. Then you had the greater palatine foramen and the lesser palatine. ये छोटा सा lesser palatine foramen है और ये वहाँ पे बड़ा वाला greater है. तो मैंने बताया था greater palatine nerves and vessels कहाँ जाती थी? किसको supply करती थी? Greater palatine nerves and vessels किसे supply करती थी guys? मोलर्स को और आगे तक पैलेटल साइड पे सारे एंटीरियर टीथ को करते सारे टीथ को पैलेटल साइड पे करी होती है. ओवर हियर एंटीरियर्स को सिर्फ कौन कर रहा होता है? यहाँ से जो आपकी इंसाइसिव नर्व्स निकल रही होती हैं. ठीक है व्हिच वर आल्सो नोन एज समथिंग एल्स. डज समवन एल्स रिमेंबर जो इंसाइसिव नर्व्स एंड वेसल्स इनका कुछ और भी नाम होता है? दे आर आल्सो कॉल्ड व्हाट? Someone find that out for me. I think I'm skipping it, but I think it was the nasopalatine nerves and vessels. Nasopalatine, ठीक है. And by a greater palatine जो थी वो सारी यहाँ तक before your canine, ये आपका canine है, ये incisor है, ये lateral central incisor है, lateral incisor है, canine है. यहाँ तक आपकी nasopalatine या फिर incisive nerve होती है और इससे पीछे पूरी palatal side पे आपकी greater palatine होती है. जो लेसर पैलेटाइन निकलती है वो सॉफ्ट पैलेट को और थर्ड मोलर के थोड़े से हिस्से को करती है. मगर दिस इज ऑल ऑन द पैलेटल साइड, दिस इज नॉट ऑन द बक्कल साइड. बक्कल साइड पे नर्व्स कौन सी होती हैं? बक्कल साइड पे कौन सी नर्व सप्लाई होती है? Fast guys, we can't waste so much time. Come on, you should be like shooting answers at me. Unmute करो अपने आप को, बोलो जरा, participate करो. बक्कल साइड पे कौन सी नर्व्स होती हैं? इंफीरियर एल्वियोलर. इंफीरियर नहीं होती, इंफीरियर नहीं होती. एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर, मिडिल सुपीरियर एल्वियोलर, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर. एएसए, एमएसए, पीएसए. ठीक है ये सारी किसकी ब्रांच है? नेजो पैलेटाइन, एएसए, एमएसए, पीएसए, ग्रेटर पैलेटाइन, लेसर पैलेटाइन. ये कौन सी क्रेनियल नर्व की ब्रांचेस हैं? किसकी बात? मैक्सिलरी. बिल्कुल शाबाश. मैक्सिलरी नर्व की ब्रांचेस हैं क्योंकि ऊपर की बात करें, मैक्सिला की बात करें. इंफीरियर एल्वियोलर किसकी ब्रांच थी? मैंडिबुलर नर्व. मैंडिबुलर. तो वो ऊपर कैसे आ गई? वो तो हम मैंडिबल के साथ स्टडी करते हैं, लोअर जॉ के साथ स्टडी करते हैं. अभी हम बात कर रहे हैं अपर जॉ की. तो ये सारी मैक्सिलरी नर्व की ब्रांचेस है. किस गैंग्लियन से आती हैं ये दोनों? ग्रेटर पैलेटाइन, लेसर पैलेटाइन. Pterygopalatine ganglion. I think. Who is this who's answering me? Is it Samin? Yes. Yes. I don't want just Samin to participate. I want other people to participate here. अच्छा. So we studied till here. Then I told you these are two कोआने. ठीक है. एक को कोआना कहते हैं without the e और दो को कोआने कहते हैं. इसी तरह मैक्सिला एक साइड का होता है मगर ये दो मैक्सिली होता है. AEN में ऐड हो जाता है. This singular bone over here, a single bone over here जो बीच दोनों कोने के है या दोनों नोज की साइड्स में होती है, that is your vomer. It's a tiny bone, vomer. And this yellow one over here, ये कौन सी प्लेट है? ये कौन सी प्लेट है? मीडियल टेरिगॉइड. मीडियल टेरिगॉइड प्लेट है. और ये ऊपर से क्या लटक रहा है? हेमिलिस. हेमिलिस हो रहा है. ये क्या है? ये कौन सी प्लेट है? लैटरल टेरिगॉइड प्लेट. लैटरल टेरिगॉइड प्लेट. अभी मैंने ये फोरामेन बताया था. कौन सा फोरामेन था जो नजर आता है?
foramen ovale, ओवेल, और नीचे इसके कौन सा है? spinosum, स्पाइनोजम. वेरी नाइस गाइस. ओके सो उसके बाद उन्होंने हमें क्या दिखाया? उन्होंने दिखाया ग्रूव फॉर द फेरिंजोटिम्पैनिक ट्यूब. फेरिंजोटिम्पैनिक ट्यूब, व्हाट डज इट टेल? यहाँ पे फेरिंग्स होती है, यहाँ पे फेरिंग्स होता है, यहाँ पे बेजी ऑक्सीपिट से गुजरता हुआ यहाँ पे इस सारे एरिया में फेरिंग्स होता है. तो फेरिंजोटिम्पैनिक ट्यूब का पाथवे यहाँ होता है. ये कौन सी ओपनिंग है टेम्पोरल बोन में? external acoustic meatus, और द एक्सटर्नल acoustic meatus. देखो वो किस तरह अंदर पास कर रहा है. यू गाइस सी, फॉलो दिस. एंड ये सारा यहाँ पे ईयर की कैविटी जारी होती है और इवेंचुअली वो कहाँ आके ओपन हो रहा है? फेरिंग्स. इन दी फेरिंग्स ओपन होता है, नहीं हो रहा? डू यू सी इट? डू यू सी द लाइन हाउ आई एम ड्राइंग इट? डू यू सी इट गाइस? ये जो लाइन मैं तुम लोगों को दिखा रही हूँ ना, इमेजिनरी लाइन जो यहाँ से आपकी साउंड जाती है, या आपके आपके अंदर मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर होता है. इंटरनल ईयर के बाद इंटरनल ईयर से शुरू होती है आपकी फेरिंजोटिम्पैनिक ट्यूब, जो कि टिम्पैनिक कैविटी से लेके फेरिंग्स तक जाती है. इस तरह ये बाहर का और इनर प्रेशर इक्विवेलेंस होती है. ऐसे ही होते हैं जब हम हायर, व्हेन वी आर फ्लाइंग इन द एयरप्लेन और यू गो अप इन द माउंटेन्स, तो आपका कान या बंद हो जाता है. ऐसा होता है, कान बंद हो जाता है. एंड देन यू स्वॉलो. जब आप अपना ओरोफेरिक्स यूज करते हैं, आप स्वॉलो करते हैं, तो एकदम से पॉप करके ये सारा पाथवे खुलता है. ऐसे होता है किसी के साथ? yes, So this is the pathway that we follow. This is the external auditory meatus. फिर यहाँ पे external canal होता है, ear canal के बाद external ear, middle ear, internal ear होता है इस सारे एरिया में temporal bone में. inner ear से शुरू होती है आपकी pharyngotympanic tube और वो आपको pharynx में लाके ले आती है. अब next हम study करेंगे ना ear, and you guys will see how. Okay, then you have the groove for that. Then you have the foramen lacerum. जो अब मैंने उस वक्त नहीं बताया था, जो बेजी ऑक्सीपिट के बिल्कुल साथ साथ है, वो कौन सा foramen है? That's your lacerum. So we have lacerum here, ovale here, spinosum here. ठीक है? और ये क्या है? Pharyngeal tubercle. अब ये इसको उन्होंने क्या नाम दिया है? ये पूरे एरिया को बेसिलर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन. और इसका दूसरा नाम क्या, जो मैंने अभी तुम लोगों को बताया? basal occiput, Basal occiput. Or you could just simply say the basilar part of the occipital bone, because ये base है और इस पे skull बैठ जाता है. उसके बाद उन्होंने foramen magnum दिखाया, वो भी occipital. Now they have put in the brackets, you can see लिखा है कि वो चीजें कौन सी bones में है. You see that? So that's very important to remember, because when someone is asking you these things, they can ask you. मैं तुम्हें foramen ovale दिखाऊंगी वाइवा में, ठीक है? उसके बाद मैं कहूँगी ये कौन सी बोन है जिसमें ओपन हो रहा है. So you should know that. Or I could put that as an MCQ in your paper. I could say that ये foramen ovale है, उसमें से ये पास होता है, मगर ये कौन सी बोन में प्रेजेंट होता है स्कल में. So you should remember कि ये कहाँ कौन सी बोन थी. ठीक है? टेम्पोरल नहीं है, ऑक्सीपिटल नहीं है, ये स्पीनोइड के अंदर है. ठीक है? That only you can have if you have a pictorial memory. ठीक है? तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है जो इन्होंने ब्रैकेट्स में लिखी हुई है. So you have the foramen magnum. Then you have this one, जो ये आपके कॉन्डा से एक ओपनिंग होती है छोटी सी अंदर करके. This is your hypoglossal canal. क्या गुजरता होगा इसमें? hypoglossal nerve, Hypoglossal nerve. Very nice. और hypoglossal nerve की क्या cranial nerve की क्या नंबर थी? 12. Very nice. So new students, if you don't know this, you should all learn के fresh students especially, you should learn कि cranial nerves हमारी क्या है, cranial nerves 1 to 12 क्या है, क्या नाम है, या motor है. Okay, these are your occipital condyles, then these are condylar canals. ये हर स्कल पे नहीं नजर आते इतनी आसानी से, तो condylar canal बहुत सा जो है. ठीक है? ये बहुत टाइनी सा होता है तो इतना नहीं नजर आता, मगर हाइपोग्लॉसल जरूर नजर आता है और पूछा जाता है. फिर आपके पास ये होती है, आपके पास इंफीरियर नोकल लाइन होती है और सुपीरियर नोकल लाइंस होती हैं. ठीक है? और उसके ऊपर एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस होती है और नीचे क्रेस्ट होती है. ठीक है?
जो ऊपर की तरफ है, अब तुम्हें लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ है, बट व्हेन यू सी द स्कल ऑब्वियसली ये अपवर्ड्स है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो दिस इज योर एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल, वो सुपीरियर नोकल लाइन एंड द इंफीरियर नोकल लाइन, और सुपीरियर नोकल लाइंस के ऊपर एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस आती है। ठीक है, ये वाली साइड सबको समझ आ गई है? Yes. Now let's look at this side. What are they showing here? Over here this show के zygomatic bone नजर आ रही है, frontal bone बहुत थोड़ी सी नजर आ रही है, और उसके बाद this show ये क्या है, इन्होंने pterygoid hemilis दिखाया है, वो भी हम लोगों ने देख लिया है, medial plate दिखाई है, देख लिया है। Pterygoid fossa. What is the pterygoid fossa? It is the space between. It is the space between. You can see it. What is it? Medial pterygoid plate. Pterygoid fossa is the space between what? Between the two plates. Very nice. It is the space between the medial and lateral pterygoid plates. Then you have the lateral plate. You've seen it. You have the scaphoid fossa. Where are they taking the scaphoid fossa? Let's go. Scaphoid fossa यहाँ नीचे, दोनों plates के बीच में नीचे scaphoid fossa है. ठीक है? Then greater wing of the sphenoid here. जब हम इसे internal, हम वैसे sphenoid के wings हमने कौन से part of the skull में पढ़े थे? कौन सा नॉर्मा या कौन सी चीज पढ़ते थे स्कल की? तो हमें सारे विंग्स पढ़ते थे। Middle cranial fossa. Middle cranial fossa. Very nice guys. When we used to study the cranial cavity in the middle cranial fossa, we used to see the body of the sphenoid bone, then we used to see कि उसके lesser wings होते थे, greater wings होते थे, ये सारी चीजें हमने वहाँ पढ़ी थी। तो जब हमें नीचे नजर आती है वो हमें greater wing नजर आती है। अब वो बॉडी तो इसके ऊपर opposing side पे, we don't see that over here, right? और यहाँ पे हमें कहीं पे क्रिस्टा गैली नजर आती थी, फिर उसके ऊपर बॉडी ऑफ स्फीनोइड आ जाती थी, फिर वो बटरफ्लाई बनती थी। तो हमें उस बटरफ्लाई का इस तरफ सिर्फ ग्रेटर विंग नजर आता है। ठीक है, फिर ओवेल हमने देख लिया, फिर हमने स्पाइनोजम देख लिया है, यहाँ पे स्पाइन ऑफ स्फीनोइड, ये स्पाइन ऑफ स्फीनोइड नजर आ रही है। ठीक है, फिर जाइगोमैटिक प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन है ये। ठीक है, जाइगोमैटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ जाइगोमैटिक बोन। ठीक है, आर्टिकुलर ट्यूबरकल है, जो मैंडिबुलर फॉसा के सामने एक ट्यूबरकल या वो होती थी, मैंडिबुलर फॉसा यूं करके होता था, ऐसे ही करके होता था, एक अंदर की तरफ होता था और थोड़ा सा बाहर होता था, ऐसे ही था जहाँ पे टीएमजे हम पढ़ते थे। तो आर्टिकुलर एमिनेंस होती थी, जिसे आर्टिकुलर ट्यूबरकल कहते हैं, आगे की तरफ एंटीरियरली होती थी या पोस्टीरियरली होती थी? ऐसे था ना, it was like a curve, like an infinity, half infinity curve. इसके अंदर, इस फॉसा के अंदर तो आपका कॉन्डाइल चला जाता था। फिर एक और चीज होती थी जिसे हम आर्टिकुलर एमिनेंस कहते थे, आगे की तरफ एमिनेंस होती थी, उसके पीछे फॉसा होता था। तो एंटीरियरली वो एमिनेंस है और पीछे मैंडिबुलर फॉसा है, या कॉन्डाइलर फॉसा भी कहते हैं। थाइलॉइड प्रोसेस है, वी नो दैट। पीट्रोटिम्पैनिक फिशर है, यहाँ पे एक फिशर होता है, पीट्रोटिम्पैनिक फिशर, यू कैन रिमेम्बर दैट, इतना नजर नहीं आ रहा होता। देन यू हैव द कैरोटिड कैनाल। ठीक है, एक्सटर्नल ओपनिंग है ये कैरोटिड कैनाल की। ठीक है, कैरोटिड कैनाल से हम कुछ पढ़ते थे, कहीं पे पढ़ा था कि कुछ याद आता है, कुछ गुजर के ऊपर जाता था, मुझे लगता है, क्या था? Internal carotid artery. Very nice, Samin. Yes, it was the internal carotid artery. जब हम internal carotid artery पढ़ते थे तो मैं तुम लोगों को बताती थी कि वो carotid कैनाल से निकल के अंदर जाता है, फिर internal carotid artery की आगे से 4 branches होती हैं. Never say carotid artery because you have the internal and the external. Same way, never say jugular vein because you have the internal and external, and both are different. Both have different passages, different pathways, different tributaries, different branches, different supplies, different drainages. तो कभी भी carotid नहीं कहना सिर्फ और jugular नहीं कहना, ठीक है? Okay, then we have the tympanic canaliculus. See it over here. मिलती है, नहीं मिलती, कभी कभार नहीं नजर आती in the skull. If you don't find it, that's okay. External acoustic meatus, I just explained it to you. Mastoid canaliculus, छोटा सा foramen होता है, ये भी कोई नहीं कहता है सच ढूंढने को। मैस्टोइड प्रोसेस से कौन सा नेक का बड़ा मेजर सा मसल शुरू होता है? उसके नाम में भी आता है इसका नाम, sternocleidomastoid. Very nice, the sternocleidomastoid.
शाबाश। फिर उसके बाद है स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन। दे डोंट नॉर्मली आस्क फॉर इट, मगर यहाँ पे मास्टोइड प्रोसेस के ना थोड़े से मीडियली एक स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन पड़ा हुआ होता है। And you have the petrous part of the temporal bone. ये सारी petrous part of the temporal bone है. You have the mastoid notch for the digastric muscle. हाँ, तो mastoid area से ही digastric muscle भी शुरू होता था. Digastric की कौन सी belly शुरू होती थी वहाँ से? Posterior belly. और anterior belly digastric की कहाँ जाकर? Anterior belly कहाँ होते थे? On the mandible. Very nice, Hamza. Where in the mandible? There was a name for the place जहाँ पे जाती थी. Muscle के ऊपर ही नाम था. Muscle वाला ही नाम था. It was your digastric fossa. Digastric fossa में जाके लगती थी. Then you have the occipital groove for the occipital artery here. Then you have the jugular fossa. I talked about the jugular fossa, and इसी के अंदर जाके deeply jugular foramen है. So till now we did viscerum, right? We did ovale, we did spinosum, we did the carotid canal, the hypoglossal canal, and the jugular foramen. So all these are super important, and you need to know what passes through them. ठीक है? नीचे आते हैं. ये हमें थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे पेराइटल बोन का नजर आ रहा है. वैसे हम पेराइटल बोन कौन से उसमें पढ़ते हैं? नॉर्मल वर्टिकलिस. वर्टिकलिस में भी पढ़ते हैं और लैटरलिस में भी पढ़ते हैं. दोनों में नजर आता है. वर्टिकलिस में नहीं नजर आता और बिजालिस में नहीं एज सच नजर आता, और क्रेनियल कैविटी में भी थोड़ा सा आ जाता है. ठीक है. सो दिस इज योर mastoid foramen here. You have parietal bone showing. इस डायग्राम में कोई तस्वीर कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब सबको क्लियर हो गया है? Now I'm going to divide and tell you कि किस तरह कोई आपको नॉर्मा बिजालिस पूछता है. अब ये तो तुम लोगों को ओवरव्यू मिला. अब तुम लोगों से कोई पूछता है, you're sitting across me and I say कि come on, मुझे ऐसा करो इस्मा के मुझे बताओ कि नॉर्मा जो है बिजालिस क्या है. How will you explain it to me? So you're going to hold the norma bizalis in this position. ठीक है? इस तरह ही पकड़ा होना चाहिए. मतलब इसके पीछे, इस डायग्राम के पीछे तुम लोग बैठे हुए हो और इस डायग्राम के आगे मैं बैठी हुई हूँ. ठीक है? And then first of all you're going to tell me that it is formed by the maxillary bone, the palatine bone, the sphenoid bone, the vomer, the temporal bone and the occipital bone. First tell me कि ये इन बोन से बना हुआ है. After that you will tell me कि इसको हम 3 parts में divide करते हैं. We divide it into 3 parts. First part, the anterior part, ends at the border of the hard palate. The second part is from the border of the hard palate all the way up to the anterior margin or the anterior border of the, what is this? Foramen magnum. Foramen magnum. And the third part or the posterior part is posterior to the anterior border of the foramen magnum. So इसको हम 3 parts में divide करते हैं. Then you would go on to explain the first part to me. How you would explain the first part is you will say that this is the hard palate. Because जो first part है, it is mostly comprising of the hard palate. उसके अंदर हमने ये 2 bones देखी. ये इसका switcher है, horizontal switcher. इसके पीछे ये वाली bone थी, आगे ये वाली bone थी, ये वाला foramen bone था, ये वाला foramen था, ये tiny वाला ये foramen है, और ये आपके सारे maxillary arch है और इसके अंदर teeth है. तो ये खत्म हो गया आपका teeth. ठीक है? Let's look at it. अब एंटीरियर पार्ट पे आ जाते हैं. ये इस तरह करके इस स्कल पे अगेन they've colored, nobody is gonna be coloring for you. ठीक है? तो ये हमें नजर आ रहा है कि ये सारी हमारी palatine process of the maxilla है और horizontal plate of the palatine bone. उन्होंने लिखा है रियल स्कल पे इतना इतना सा हिस्सा होता है इसका. ठीक है? ये नजर आ रहा है प्रोब अंदर जाता हुआ. ये इंसाइजिव फोरामेन है. ठीक है? Look at it here. ये सारे वो पार्ट्स हैं. जब इंटीरियर पार्ट एक्सप्लेन करना है तो ये सारी बातें करनी है. इंसाइजिव फोसा की, पैलेटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला की, एल्वियोलर आर्च की, ग्रूव आता है, एल्वियोलर ग्रेटर पैलेटाइन मसल्स का ग्रूव नजर आता है, हॉरिजॉन्टल प्लेट की, ग्रेटर एंड लेसर पैलेटाइन फोरामेन की.
इस तरह नजर आएगा. I want you to take a look at this because we don't have a real skull, but this will help you in understanding what it would feel like in real life. ठीक है? So anterior part of the norma bizalis will be described as number 1. हमने क्या देखा है ये? What is this? Lesser palatine fossa. लेसर पैलेटाइन फोरामेन. उसमें किस तरह डॉट सा नजर आ रहा था, मगर आपको ये इस तरह पोस्टीरियर बॉर्डर पे नजर आ रहा होता है. ये जो थोड़ा सा इसके आगे होता है और बड़ा सा होता है जो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा होता है सेकंड मोलर के साथ. ये देखो सेकंड मोलर की जगह ये क्या है? Greater palatine foramen. ग्रेटर पैलेटाइन. ये बीच में क्या है? Palatine groove. पैलेटाइन ग्रूव, और was also the vertical switcher भी कह रहे थे, और the intermaxillary switcher. ठीक है. What is this over here? Incisive fossa. Yeah. And what is this? This we didn't discuss. Nasal spine. This is your posterior nasal spine. And what is this? जो last molar के पीछे थोड़ी सी extension होती है. What is this? The maxillary tuberosity. Maxillary tuberosity से कोई एक muscle of mastication शुरू होता था जो कि मुझे याद नहीं आ रहा. Lateral pterygoid होता था. Medial pterygoid होता, lateral होता होगा. मुझे ऐसा लगता है. मगर tuberosity से एक muscle की origin होती थी. So this was the tuberosity, okay, that we talk about. So this is what you're going to tell me in the anterior part of the norma bizalis. You know that lesser palatine foramen से lesser palatine nerve vessel गुजरती है. Greater से greater palatine nerves and vessel गुजरती है. Palatine groove में greater palatine artery travel कर रही होती है. ये palatine groove है, ठीक है. उसमें ये travel कर रही होती है. Incisor में greater palatine artery होती है और nasopalatine artery होती है, ठीक है. Now we come on to the middle part. The middle part is between the hard palate and the posterior border of the hard palate and the anterior border of the foramen magnum. Acha, it was the medial pterygoid, Naila. Thank you. I don't remember it. Acha, we looked at this. We've already looked at this. So the middle part comes over here, यहाँ से लेके और यहाँ तक. तो इसके अंदर कौन सी बोन्स आनी? इसके अंदर थोड़ा सा ऑक्सीपिटल बोन का पार्ट है. इसमें मोस्टली स्फीनोइड, वोमर और टेम्पोरल बोन आ जाती है, ठीक है. अब इसको थोड़ा सा देखो. लुक एट इट. ये स्कल की ये क्या है? zygomatic arch. ये क्या है? Mandibular fossa. ये क्या है? Mastoid process. Mastoid process. Mastoid process. ये क्या है? Condyles. Occipital condyles. ठीक है. अब देखो यहाँ पे ये क्या है? Nasal spine. Posterior nasal spine. ये क्या है? Basilar part of the basal occiput. Basal occiput. And this? Vomer है. ये vomer है. Why isn't Hamza participating? And is Zoha here with me? Zoha is participating or not? I need to see सबसे messages आए. If you can't talk or if you're too sleepy to talk या बहुत ही नींद आ रही हो और नहीं सुनानी मुझे अपनी sleepy आवाज, तो at least type away, okay? थोड़ा सा try to stay awake, okay? Alrighty, so this one over here is your pharyngeal tubercle. यहाँ पे vomer है. अच्छा, जो यहाँ पे किनाल जाता है, ये कौन सा फोरामेन है? ये इसके अंदर डेप्थ में जाएगा. इस फोसा की डेप्थ नहीं, ये लैसरम नहीं है. ये लैसरम नहीं है. दोबारा जगुलर फोसा है. ये जगुलर फोसा है और उसके अंदर जगुलर फोरामेन है. और ये जो है ना, ये क्या थे, कॉन्डाइल्स के बिल्कुल साथ यहाँ अंदर करके जाएगा. यहाँ पे ये क्या है? हाइपोग्लॉसल. ये हाइपोग्लॉसल है. अब ये वाले हम जरा से स्टडी करते हैं. ये कौन सा होता था जो बिल्कुल बेसी ऑक्सीपिट के साथ होता था? लैसरम. ये लैसरम था. लेट्स लुक एट इट ओवर हियर. ठीक है, थोड़ा सा अपनी कंफ्यूजन दूर करते हैं.
ये बेजी ऑक्सीपिट के साथ लेसरम होना चाहिए। ये हमें हाइपोग्लॉसल नजर आया, हमें लेसरम नजर आया और हमें जगलर नजर आया। आए हैं ये तीनों हमें नजर? Yes. And do you see how difficult it is now, how important it is to form a pictorial memory and practice on the skull? यहाँ पे किसी को समझ आती है तो मुझे भी नहीं देख के समझ आती एकदम से ये सारे क्या है। अगर आप अपनी मेमोरी बनाएं कि ये एक सेमी सर्कल सा है, इसके लैटरली यहाँ पे जगुलर है, कॉन्डाइल के बिल्कुल साथ हाइपोग्लॉसल है और बेजी ऑक्सीपिट के साथ लेस्ट्रम है। जो रह गए ना वो देखते हैं। देन इट सेज कि जगुलर फॉर्मेन के ऊपर रोटेड है और उसके ऊपर स्पाइनोजम और वो ओवेल और स्पाइनोजम है। लेट्स सी अगर हमें ओवेल और स्पाइनोजम नजर आ जाता है। Very difficult to understand which one is ovale and spinosum, right? I think is this is the lacerum. ये ओवेल है और यहाँ कहीं छोटा सा स्पाइनोजम होगा। कभी कभार स्पाइनोजम नहीं नजर आता, छोटा सा होता है। But I believe this is ovale. And I believe कि इसके अंदर हमें कैरोटिड कैनाल ये लगता है, मुझे पता नहीं। हालांकि कैरोटिड कैनाल शुड बी वेरी राउंड, या ये कैरोटिड कैनाल का एरिया जो कि ऑसिफाई हो चुका है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। देखो थोड़ी सी समझो, ये हमारी मिडिल, ये हमारी कौन सी बोन है? Vomer. ये ओपनिंग्स है। व्हाट आर दीज? One guy. One eye. What did we call these two openings? Choanae. ठीक है, these are your nasal choanae. This is your pterygoid fossa और pterygoid fossa का नीचे वाला पार्ट क्या है? Scaphoid fossa. ठीक है, between the medial plate and the lateral plate और ये ऊपर हेमिलिस है। अच्छा, ये foramen ovale है। हमने सही देखा था, हमने लेस्ट्रम सही देखा था, ओवेल भी सही देखा है। So we were right in pointing ovale out. ये ovale है। So that's what they say. They say that this is the ovale. सबको नजर आता है? Yes. You see how difficult it is to tell on the skull. So, but we don't see the spinosum here. Spinosum नहीं नजर आ रहा इसमें। मुझे लगता है कि ये कैरोटिड कैनाल था। अच्छा, ये बेसिलर पार्ट है, स्केफोइड है, फोरामेन लास्ट्रम है, फेरेंजियल ट्यूबरकल है। ये सारी हमें समझ आ जाती है। What part are we studying? Are we studying the posterior part of the base of the skull? What part are we studying right now? Middle part. Middle. The middle part. ठीक है, this is your middle part. लो जिन्होंने ढूंढ लिया स्पाइनोसम भी। ये आपका लेसरम था पहले की ना, फिर ये ओवेल था, यहाँ पे ये ओवेल था और ये टाइनी सा इसके पीछे नहीं है स्पाइनोसम। देखो इस साइड पे नहीं नजर आता, या ये है टाइनी। If someone doesn't tell us, can we see? आवाज आ गई, मगर मुझे ये वाला प्लीज लगा दें जरा। दूसरा वाला इंटरनेट लगा। दूसरा शो ही नहीं हो रहा आपके पास। क्यों शो भी नहीं हो रहा? लेक्चर के बाद में दिखा लीजिएगा। आपके मोबाइल पे शो हो रहा होगा AMCH। Hi guys, can you hear me? Alrighty, wait up. I'm gonna share the screen. We'll just wrap it up. हमने सारा कर ही लिया है। So I was just showing you कि लेस्ट्रम देखो किस तरह हमें नजर आ जाता है। ठीक है, ये लेस्ट्रम हमें आराम से नजर
लिटिल ट्रबल. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट ओवेल जो है ना थोड़ा सा ओवॉइड सा होता है. आवाज आ रही है? टाइप अवे अगर आ रही है. ओके, सो वी आर जस्ट रैपिंग इट अप. ओवेल ये है और इसके पीछे छोटा सा स्पाइनोजम है व्हिच यू वुड नॉट बी एबल टू सी अगर मैं ना पॉइंट आउट करूं. ये छोटा सा स्पाइनोजम है. यहाँ पे भी, यहाँ तो नजर ही नहीं आता है. ठीक है, सो यू सी ओवल सा जो है लंबा सा वो ओवेल है और स्पाइनोजम कभी कभार नहीं नजर आता. एंड समवन पॉइंट्स इट आउट लाइक ओवर हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी द स्पाइनोजम. ठीक है, छोटी सी स्पाइन ऑफ स्फीनोइड यहाँ से निकलती है. कैरोटिड कैनाल ऑसिफाई हो गया जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था. कैरोटिड कैनाल कहाँ पे होता है? जो जगुलर वाला है ना, ये जगुलर फोरामेन है. ये रहा जगुलर फोरामेन इस साइड का, इसके ऊपर कैरोटिड कैनाल है. बेसियो ऑक्सीपिट है, उसके राइट पे लैसरम है. कंडाइल है, उसके साथ ये अंदर कौन सा है? कंडाइल के साथ कौन सा है? हाइपोग्लॉसल. वेरी नाइस. सो वी कवर्ड दिस. एंड ये आपका जगलर. उन्होंने किसी और का, अब इन्होंने ना दूसरा स्कल उठाया है. इस पे लेट्स सी, आई वांट यू गाइस टू हेल्प मी. ये क्या है? ये बेसियो ऑक्सीपिट के साथ ये क्या है? ये और ये क्या है? ये वाला भी, ये वाला भी, ये क्या है? कम ऑन समवन टेल मी. ये वाला क्या है? लैसरम है. नाइस. और जो ये जगलर है, इसके ऊपर ये जगलर है और इसके साथ ये अंदर क्या जा रहा है? यहाँ पे अंदर जा रहा है और यहाँ पे अंदर जा रहा है. हाइपोग्लॉसल है. और ये क्या है? ये जो ओवल सा है, ओवेल. और ये क्या है जो राउंड सा है छोटा सा, जिसके ऊपर कर्सर है? स्पाइनोजम. तो देखो इस पे कितना अच्छा नजर आ रहा है. इस पे ओवेल और स्पाइनोजम नजर आ जाते हैं. ठीक है, इस साइड पे इतने अच्छे नहीं नजर आ रहे, इस साइड पे कंफ्यूजिंग हो जाता है. बट ऑन दिस साइड यू कैन सी इट दैट दिस इज लैसरम, ओवेल, स्पाइनोजम. ये आपका हाइपोग्लॉसल है, ये जगलर है. और यहाँ पे कहीं कैरोटिड कैनाल होना चाहिए. जगलर के ऊपर यहाँ पे कैरोटिड कैनाल होना चाहिए. अब कैरोटिड कैनाल जो है ना वो इस तरह का लंबा सा नहीं होता. ये उसकी एक बात होती है. कैरोटिड कैनाल गोल सा होता है, उसमें से आर्टरी गुजरती है ना, तो प्रॉपर गोल होता है. अब इसमें नहीं अच्छा नजर आ रहा. इधर देख लेते हैं. What is this? I want you to see it without the ये लैसरम है. ये क्या है? ओवेल है. शाबाश. ये क्या है? टाइनी सा स्पाइनोजम है. ये क्या है? गोल सा. वेरी नाइस. इसमें कितना अच्छा कैरोटिड कैनाल नजर आ रहा है. लेट मी सी अगर ये 9 कैरोटिड कैनाल है. यस, इट इज द कैरोटिड कैनाल. सो दैट्स व्हाट आई सेइंग. और ये स्टाइलोमास्टोइड है. ठीक है, ये जो 8th वाला है आई बिलीव, हाँ ये स्टाइलोमास्टोइड है. ये हम फेशियल नर्व में पढ़ते थे, इसलिए ज़रा इसलिए याद कर सकते हैं क्योंकि फेशियल नर्व में से पढ़ते थे. ठीक है, ये आपका ओवेल है, वो सॉरी कैरोटिड कैनाल है. और यहाँ पे कहीं इसके नीचे जो कि हमें नहीं नजर आ रहा, एक तो यहाँ पे आपके हाइपोग्लॉसल कैनाल जाएगा और यहाँ पे आपके इधर कौन सा होगा? इस वाले एरिया में क्या है? जगुलर है. वेरी नाइस. तो इस एरिया में जगुलर है और इससे यहाँ जरा सा और मीडियल है और इसके पीछे अंदर जो जाएगा वो हाइपोग्लॉसल कैनाल होगा. ठीक है, अब इन्होंने 1 2 क्या बताया? इन्होंने बताया 1 मीडियल लैटरल टेरिगोइड है, 2 मीडियल है. पता है हमें 3 आर्टिकुलर एमिनेंस है. 3 का बना हुआ है. ये भी पता है 3 आर्टिकुलर एमिनेंस है. 4 मैंडिबुलर फॉसा है. 5 का है? 5 नहीं है. 5 ये रहा. ये लैसरम होगा. ठीक है, लैसरम है. 6 ओवेल है. 7 स्पाइनोजम है. 8 स्टाइलोमास्टोइड है. 9 कैरोटिड है. अच्छा, यहाँ पे पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक आके लगती थी. मास्टोइड वो उस पे लाइन पे. और बी पे क्या आके लगता है? ग्रूव फॉर ऑक्सीपिटल आर्टरी. 2 ग्रूव्स हैं. जो ऊपर की तरफ ग्रूव है दैट इज योर फॉर द बेली, पोस्टीरियर बेली. और जो पीछे वो ऑक्सीपिटल आर्टरी के लिए. ये क्या है? मास्टोइड. ये क्या है? What is it? What is it? What is it? Greater palatine foramen. Very nice.
इस तरह हम पोस्टीरियर पार्ट पे आ जाते हैं। पोस्टीरियर पार्ट सबसे आसान है, उसमें इतनी कोई खास ओपनिंग्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कॉन्डाइल्स आ जाते हैं और उसमें रेस्ट ऑफ द फोराmen मैग्नम आ जाता है। फोराmen मैग्नम के इंटीरियर बॉर्डर से पोस्टीरियरली ऑल द वे इज योर पोस्टीरियर पार्ट। सो लेट्स लुक एट इट। क्या क्या नजर आएगा इफ आई पुट इट ओवर हियर, इफ आई पुट द लाइन ओवर हियर। सो इसमें ओपनिंग्स तो एज सच कुछ खास नहीं नजर आती, थोड़ी सी इसके अंदर सिर्फ दो बोन्स आएंगी, मेजरली ऑक्सीपिटल बोन और माइनरली थोड़ा सा हिस्सा टेम्पोरल बोन का आता है। सो लेट्स लुक एट कि इसमें क्या क्या नजर आता है। इसमें हमें कॉन्डाइल्स नजर आते हैं, ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक है, कॉन्डाइल नजर आया, मैग्नम नजर आया, jugular process नजर आता है। ओके, नॉट द foramen, द process। कैन यू टेल मी ये क्या है, ये लाइन क्या है? Tell me what line this is. Come on, Yula, type away. 1 minute रह गया सिर्फ। Is it the inferior one or the superior one? Inferior, जो ऊपर की तरफ उधर जा रही है, उधर ऊपर की तरफ जा रही है। This is your superior। Superior knuckle line की इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस लाइन, इस एरिया को क्या कहते हैं? प्रोट्यूबरेंस। और इस एरिया को क्या कहते हैं? Crest. This one is the crest and this one is the protuberance. ठीक है? Let me look at what's that. So this is the assignment for today. People who didn't send me assignment, I think it was Hassan. Hassan, if you're not part of this, is he here today? Is he here today? He's not here today. Other two, I think it was Osama, the new kid, and Aisha Fayaz, also a new kid. I need your assignments for the tongue wali thing. ठीक है? You have to stay up to date with the fourth substage. So the fourth substage अब आपको कोई नहीं कराएगा. So please stay in touch with it. ठीक है? और आपने enlist करना है आज नेटरिस से जाके ये सारे structures पढ़ने हैं, and then you have to enlist for me कि jugular foramen से क्या गुजरता है, magnum से क्या गुजरता है, लेस्ट्रम ओवेल स्पाइनोजम से क्या गुजरते हैं, कैरोटिड कैनाल से क्या गुजरता है, हाइपोग्लॉसल से क्या गुजरता है। ठीक है, इनके मेजर इनमें से क्या गुजरता है ये आपने लिस्ट करनी है चीजें फॉर मी एंड लर्न देम टू। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई थॉट alhamdulillah next time we'll start with something new inshallah. We'll probably start with ask me in the group if you have any questions. I will not take someone else's time. Take care and Allah Hafiz.